والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. نور نبی دا جو جہاں میں نہیں ماتا احمد مصطفیٰ حضور کرے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر رب باری تعالیٰ نے فرمایا پوری میری کائنات بنانے کا مقصد صرف میرے مصطفیٰ کی ذات پاک ہے. میں نے کائنات کو پیدا کیا تو فقط اس بات کے لیے پیدا کیا میں نے اپنے مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بیچنا نہ ہوتا، نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج چاند ستارے بناتا. میں نے صرف کائنات کو سجایا اسے تو اپنے مصطفیٰ کی خاطر. ایک دن میرے کونین کے والی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار میرے کونین کے والی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ عمر کے اندر میں آپ سے بڑا ہوں یا آپ مجھ سے بڑے ہیں؟ میرے کونین کے والی نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عمر کا پتہ نہیں، لیکن چوتھے حجاب کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 سال
کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جس کو میں نے اپنی زندگی کے اندر 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ میرے کونین کے والی نے فرمایا اور جبرائیل 70,000 سال کے بعد ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کو تو 72,000 دفعہ اپنی زندگی کے اندر دیکھ چکا ہے۔ جبرائیل تیری تو عمر بڑی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ میرے کونین کے والی نے فرمایا او جبرائیل علیہ السلام یہ بتائیں اگر آج وہ ستارہ اگر آپ کے سامنے ہو تو کیا اس ستارے کو پہچان لیں گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچان لوں گا۔ میرے کونین کے والی نے اپنا امامہ مبارک اپنی پیشانی سے تھوڑا سا اوپر کیا تو وہی ستارہ میرے مصطفیٰ کی پیشانی کے اندر چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ میرے کونین کے والی نے فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے جو ستارہ 70 سال کے بعد 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہے، اسی ستارے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ رب باری تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی شان، میرے مصطفیٰ کا مرتبہ، میرے مصطفیٰ کی جو عظمت ہے وہ کائنات کے اندر میں نے بلند کر دی ہے، یہاں تک کہ رب باری تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ خالق کائنات نے ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا، رب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا فضل ملے اور میری رحمت ملے تو پھر فلیفرحوا، اے ایمان والو، اے مومنوں تو پھر جشن مناؤ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے اندر رب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب میرا فضل ملے اور میری رحمت ملے تو پھر فلیفرحوا، تو پھر جشن مناؤ۔ ایمان والوں نے پھر دوبارہ اللہ رب العزت کے حضور پوچھا کہ مولا تیرا فضل کیا ہے اور تیری رحمت کیا ہے، کس طرح سے ہے؟ تو پھر خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر آپ نے رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فضل رب فرمایا کہ جب میرا فضل اور میری رحمت ملے تو پھر جشن مناؤ۔ اور پھر قرآن مجید سے پوچھا مولا تیرا فضل کیا ہے؟ رب باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، میں نے جس نبی کو آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے وہ شاہد بھی ہیں، وہ مبشر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں، وہ رب کا پیغام سنانے والے بھی ہیں، اور وہ سراج منیرہ اور وہ ٹھنڈے سورج کی طرف چمکتے ہوئے ایک ایسے چاند ہیں جو مومنوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے رب کی طرف سے اے مومنوں تمہارے لیے بہت بڑا فضل ہے۔
اب پتہ چل گیا کہ جشن منانا فضل ملے تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میرا محبوب جو ہے وہ فضلاً کبیرہ ہے، بہت بڑا فضل بنا کر میں نے بھیجا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ رب باری تعالیٰ نے فرمایا جب میرا فضل ملے اور میری رحمت ملے تو پھر جشن مناؤ۔ رحمت کی باری آتی ہے، جب اپنی باری آئی تو رب باری تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جب محبوب کی باری آئی تو پھر رب باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رحمت اللہ نے اپنا قلم اٹھایا اور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، اے جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ مل گئے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نزاع کا وقت ہے، آخری وقت ہے، اور وہ اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے شیش علیہ السلام آؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ
फरमाए मुझे क्या नसीहत है। आप फरमाते हैं कि बेटे शीश, जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेना है तो अकेले नहीं लेना, जब भी नाम लेना है तो साथ मुस्तफ़ा के नाम को जोड़ कर लेना है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम कहते हैं, अबा हजूर, हमने 1400 साल तक आपसे एक ही बात सुनी है कि सरकार 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 मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आखिरी वक्त में भी आप उन्हीं के नाम के चर्चे कर रहे हैं। आज खोल के हमें ये बता तो दें कि असल बात है क्या। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटे शीश अलैहिस्सलाम, एक बात याद रखो, जब भी कायनात के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो जब वो आंखें खोलता है तो अगर उसके सामने उसका बाप होता है तो वो कहता है, उसका बाप उसको बच्चे को सिखाता है कि बोल अब्बा जी। अगर माँ होती है तो वो कहती है बोल बेटे कि मैं तेरी माँ हूँ। अगर खाला होती है, अगर मामू होता है तो वो कहता है बेटे बोल मामू। कहते हैं कि रब्बे बारी ताला ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ना मैं तुझे बिन माँ और बाप के पैदा करूँगा और मैं तुझे बिन माँ बाप के पैदा करूँगा, और जब तेरी होश सलामत होगी तो बेटे शीश अलैहिस्सलाम, मेरी जब होश सलामत हुई और मैंने जब आंखें खोली तो जब मैंने अर्श के ऊपर सबसे पहले मैंने जब मेरी नजर पड़ी थी तो अर्श पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। रब्बे बारी ताला ने फरमाया, ओ आदम अलैहिस्सलाम, तुझे बिन बाप और बिन माँ के पैदा करूंगा, और जब तेरी होश सलामत होगी तो फिर सामने मैं नाम मोहम्मद को कर दूंगा कि इसका सदका कायनात बनी, इसका सदका सारे नबी आए, इसका सदका मशरिक मगरिब शमाल जनूब बने, इसी का सदका कायनात बनी। ये वो मेरा लाडला नबी, मेरा प्यारा नबी, मेरा मनठार नबी, जो रब का भी रसूल है, जो जग का भी रसूल है। सारे आलमों का मैंने इस मोहम्मद मुस्तफ़ा को, अपने लाडले नबी को रसूल बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया, मैंने हर नबी को बड़ी फजीलतें अता फरमाई, बड़े मर्तबे दिए, बड़े मकाम दिए। इस तरह मैंने हर नबी की शान और शौकत को बुलंद कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारी आई, रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने अपने सारे फरिश्तों को इकट्ठा कर लिया और कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने सारे फरिश्तों से सजदा करवा के आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमा दी। जब फजीलत देने की बारी आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुला लिया और मैंने हम कलामी करके, रब्बे बारी ताला ने हम कलामी करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमा दी। उनकी दुआ कबूल करके, उनके भाई हारून को पैगंबरी देने का वादा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमा दी। जब फजीलत देने की बारी आई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने परिंदों की बोलियां सिखाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमा दी। मैंने उनके तख्त को मशरिक मगरिब शमाल जनूब की बादशाहत अता फरमा के मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मैंने फजीलत अता फरमा दी। जब फजीलत देने की बारी आई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने कमाल सुरीली आवाज अता फरमा के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमा दी। जब फजीलत देने की बारी आई हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने कश्ती नूह के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफान नूह से निकाल कर खैर व आफियत अमन की जगह पहुंचाकर मैंने फजीलत अता फरमा दी। जब फजीलत देने की बारी आई यकूब अलैहिस्सलाम को, रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने आंखों की बिनाई वापस अता फरमा के बेटे की जुदाई के अंदर जो रो रो के आंखों की बिनाई चली गई थी वो आंखों की बिनाई वापस अता फरमा के मैंने फजीलत अता फरमा दी। और मैंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक मैंने मिस्र की सरजमीन पर रखने से, मिस्र की कहसालियों से उनको निजात अता फरमा के मैंने फजीलत अता फरमा दी। जब फजीलत देने की बारी आई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने मिस्र की जेल से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाकर मैंने फजीलत अता फरमा दी। जब फजीलत देने की बारी आई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, रब्बे
बारी ताला ने फरमाया मैंने मछली के पेड़ से खैर आफियत बाहर निकाल कर मैंने तंदुरुस्तियां अता फरमा के मैंने उनको खैर आफियत उनके मोहल्ले की तरफ भेजकर मैंने तंदुरुस्तियां अता फरमा के यूनुस अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमा दी। जब फजीलत देने की बारी आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने मौजज़ों की लाइनें लगा दी। मैंने मौजज़ों की लाइनें लगाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने फजीलत अता फरमा दी। लेकिन जब फजीलत की बारी आई मेरे वो लाडले नबी की अहमदे मुजतबा की जब फजीलत देने की बारी आई सारे नबियों के सरदार को सारे नबियों के बादशाह को इमामुल अंबिया को जब फजीलत देने की बारी आई वद्दुहा के चेहरे वाले को वल्लैल की जुल्फों वाले को अलम नशरा के सीने वाले को मुजम्मिल के ताज वाले को यासीन के इमामे वाले को आमिना के लाल को बीबी फातिमा के बाबा को इमाम हसन हुसैन के नाना को जब फजीलत देने की बारी आई हजरत अब्दुल्ला के वो नूरानी नूर को हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के वो अजीम चश्मो चराग को आमिना के लाल को दाई हलीमा के उस राज दुलारे को जब फजीलत देने की बारी आई उस मक्कियो मदनी को हाशमियो कुरैशी को मुस्तफाओ मुर्तजा को साहिबे जमाल को साहिबे शफा को साहिबे मेराज को जब फजीलत देने की बारी आई जलवा ज़ाते किबरिया को महबूबे रब्बे बारी ताला को वाइसे तखलीके कायनात को सारे नबियों के इमाम को रहमत लिल आलमीन को खातमुन नबीयीन को रब्बे बारी ताला के वो लाडले नबी वो प्यारे नबी वो मंठार नबी को फजीलत देने की बारी आई रब्बे बारी ताला ने फरमाया मैंने वो मकाम अता फरमा दिया। मैंने आसमानों से बुराक भेजकर अपने मुस्तफा को आसमानों की सैर करा के फजीलत अता फरमा दी। मैंने जन्नत की सैर करा के मैंने फजीलत अता फरमा दी। यहाँ तक के मैंने अर्श के ऊपर बुलाकर मैंने अपने सामने बिठाकर सारे पर्दे हटाकर अपना दीदार करवा के फजीलत अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर या रसूल या अली हक चारिया जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा या अली जिंदाबाद जिंदाबाद या अली जिंदाबाद या नबी या नबी या नबी या नबी रसूल के गुलाम है मौत भी कबूल है जिंदगी फजूल है। रब्बे बारी ताला ने फरमाया और कायनात के लोगों सुन लो मैं अपनी सारी आसमानी किताबों की सरदार किताब कुरान मजीद के अंदर मैंने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक कायनात का जर्रा जर्रा सुन ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने फरमाया कि मेरा कायनात बनाने का मकसद मेरे मुस्तफ़ा है और वरफ़अना लका ज़िक्रक मैंने अपने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। कोई मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र के चर्चे करे मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करे मेरे मुस्तफ़ा की नात पढ़ेगा वो मुझसे बरकतें लेगा मुझसे अज़मतें लेगा अपनी शान को बढ़ाएगा। ये तो रब ने फरमा दिया कि मैंने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये तो हमने बरकतें लेनी है ये तो हमने मकाम लेने हैं। यहाँ तक कि रब्बे बारी ताला ने फरमाया मैंने अपने मुस्तफ़ा को वो अज़मत अता फरमाई है वो शान अता फरमाई है कि मैंने अपने मुस्तफ़ा को आसमानों का भी रसूल बनाया ज़मीनों का भी रसूल बनाया कायनात का भी रसूल बनाया। तो मैंने नबी भेजे उन नबियों का भी नबी बनाया जो रसूल भेजे उन रसूलों का भी रसूल बनाया। मैंने रब का भी रसूल बनाया मैंने जग का भी रसूल बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने फरमाया और कायनात के लोगों सुन लो मैंने अपने मुस्तफ़ा का जिक्र मैंने आसमानों पर कर दिया मैंने आपका जिक्र ज़मीनों पर कर दिया मैंने आपका जिक्र मशरिक में कर दिया आपका जिक्र मगरिब में कर दिया आपका जिक्र शमाल में कर दिया आपका जिक्र जनूब में कर दिया आपका जिक्र तुरैत में आपका जिक्र ज़बूर
बारी करना है, मेरी इबादत करनी है, मेरे हुजूर सजदा करना है, आजा तूर पहाड़ पर, मुझे इबादत करना चाहता है, आजा कलीसे के अंदर आजा, मेरी इबादत करना चाहता है, आजा मस्जिद के अंदर आजा, आजा फलां मकाम के ऊपर आजा, बाकी जमीन के ऊपर तू सजदे करेगा, तेरा एक सजदा मंजूर नहीं है, इस खास जगह के ऊपर मेरे हुजूर सजदे करेगा। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई, अपने लाडले रसूल की बारी आई, अपने मंठार की बारी आई, अपने उस लाडले नबी की बारी आई, आमिना के उस लाल की बारी आई, बीबी फातिमा के उस वादा की बारी आई, रब्बे बारी ताला ने फरमाया, ओ कायनात के लोगों सुन लो, मेरे मुस्तफा की शान सुन लो, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर आ गए हैं, इनका कदम ज़मीन पर आया, जाओ कायनात का जरा जरा पाक है, जाओ मेरे कायनात के अंदर, मेरे इस लाडले नबी की उम्मत कायनात के अंदर, इस जमीन के अंदर जहां पापी मुझे सजदा करेगी, उसका सजदा बाकी सारे नबियों की उम्मत से 100 दर्जे बुलंदी वाला हो। ऐ मेरे मुस्तफा, मैंने आपकी उम्मत के लिए मैंने सारी जगह को पाक कर दिया है, मैंने सारी जगह को मकबूल कर दिया है, जहां पर भी सजदे करेंगे मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह। मेरे कौनैन के वाली ने फरमाया यार जा अकेला क्या करो कि याद रखो, आप सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन से आप मुखातिब हैं। मेरे कौनैन के वाली ने फरमाया, और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन, यार एक जमात है, जिस जमात का ईमान लाना मेरे ऊपर बड़ी अजीब बात है। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, हमारा इल्म ये कहता है कि वो जो जमात है जिसका ईमान लाना बड़ी अजीब बात है, वो जमात फरिश्तों की है। मेरे कौनैन के वाली ने फरमाया, सहाबा इकराम वो तो हुमा वक्त 24 घंटे बारगाह इलाही के अंदर रहते हैं और उसकी तजल्लियात के अंदर रहते हैं। उन्होंने मुझे आसमानों पर जाते हुए देखा, मुझे जन्नत की सैर करते हुए देखा, मेरा अर्श के ऊपर कदम रखना देखा, मुझे अपने रब का दीदार करते हुए देखा। उनका ईमान लाना कौन सी अजीब बात है। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारे समझ में ये आता है, फिर ये जो जमात है जिसका ईमान लाना अजीब बात है, ये नबियों का है। मेरे कौनैन की वाली ने फरमाया, और जिसके ऊपर वही नाज़िल होती हो, जिसको रब ने रसूल बनाया हो, जिसको रसालत की सनद दी हो, और जिसने मेराज शरीफ के मौके के ऊपर मेरी इब्तिदा के अंदर, मेरी इमामत के अंदर उसने मेरे पीछे खड़े होकर उन्होंने मेरी इमामत ने नमाज अदा की, और रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने आपको सारे नबियों का इमाम बनाया है, सरदार बनाया है। वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नबियों का ईमान लाना कौन सी अजीब बात है। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसके बाद हमारा इल्म जवाब दे गया, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, फिर आप ही फरमा दें कि वो जमात कौन सी है। मेरे कौनैन के वाली ने फरमाया कि सहाबा इकराम बताओ तुम कौन सी जमात है। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसके बाद यही आता है कि हम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन होंगे। मेरे कौनैन के वाली ने फरमाया, और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन, तुम्हारा ईमान लाना कौन सी अजीब बात है कि जिनके सामने हम वक्त जमाले मुस्तफा रहता हो, और जिनकी आंखों के सामने मैं चांद को दो टुकड़े कर रहा हूँ, जिनकी आंखों के सामने डूबा हुआ सूरज मेरे इशारे से वापस पलट आए, जिनकी आंखों के सामने अबू जहल के हाथ बंद मुट्ठी के अंदर कैकरियां कलमा पढ़ रही हो, जिनकी आंखों के सामने मुझे गुजरता देखकर पत्थर सलाम भेजते हो, दरख्त झुक जाते हो, जिनकी आंखों के सामने एक मुर्दा जानवर एक मेरे साथ बात करने शुरू कर दे, जिनकी आंखों के सामने 12 साल का गूंगा बच्चा मेरे साथ बोलना शुरू कर दे, जिनकी आंखों के सामने 80 साल का नबीना मैं लुआबे दैन उसकी आंख में लगाऊं तो वो देखना शुरू कर दे, और जिनकी आंखों के सामने एक गो जानवर एक बत्तू मेरी बारगाह के अंदर फेंक दे और वो कहे, या रसूलल्लाह मैं इसे आपकी सदाकत चाहता हूं, तो वो मुर्दा गो जानवर जिसको रब ने ज़ुबान भी नहीं दी, लेकिन जब मेरे मुस्तफा फरमाए तो वो मेरे कौनैन के वाली की शहादतें देनी शुरू कर दे, जिनकी आंखों के सामने मेरी बारगाह की मंदिर आके मुझे सजदे करने शुरू कर दे, जिनकी आंखों के सामने
सामने सब कुछ हो रहा हो और वो मेरी बारगाह के अंदर सब कुछ देख कर मेरे ऊपर ईमान लाए, उनका ईमान लाना कौन सी अच्छी बात है। फिर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप भी फरमा दें, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मेरे कौनैन के वाली ने फरमाया, और सुन लो, आज से 1400 साल के बाद एक ऐसी जमात आएगी, एक ऐसी जमात होगी जो आज से 1400 साल के बाद आएगी, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा पर मेरे सबसे बड़े आशिक होंगे। सिर्फ सुने होगा, सिर्फ सुनेंगे कि रब्बे बारी ताला का एक ऐसा लाडला नबी है जिसकी रब्बे बारी ताला इस कदर तारीफें करता है कि कभी उसके चेहरे को बददुआ का चेहरा कहता है। और सिर्फ सुनेंगे कि कुंडल की जुल्फों वाले रसूल हैं, बस मेरा नाम सुनेंगे और मेरे ऊपर मर मिटने के लिए तैयार होंगे। सुभान अल्लाह। रब्बे बारी ताला ने अपने मुस्तफा के जरिए से कायनात के जर्रे जर्रे को ये चीज बताई। ना सिर्फ ये, मेरे मुस्तफा की अजमत ये है, और जो उन पर ईमान लाया, जिन्होंने उनकी रसालत की, उनकी गुलामी का पटका अपने गले में डाला, उन्होंने तो अपने कौनैन के वाली की अजमतें बयान करनी है, अपने कौनैन के वाली के चर्चे करने हैं। रब्बे बारी ताला ने फरमाया, मैंने अपने मुस्तफा के जिक्र को बुलंद कर दिया। और एक लंदन की यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ और वो ईसाइयत के साथ ताल्लुक रखने वाला एक क्रिश्चियन प्रोफेसर भी 100 अजीम तरीन शख्सियात का जिक्र करता है, लेकिन जब पहले नंबर पर नाम लेने लिखने की बारी आती है तो वो सबसे ऊपर नाम लिखता है जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पूछने वाला पूछता है कि यार आप तो ईसाई हैं और नाम लिखने में मोहम्मद मुस्तफा का पहले नंबर पर लिखते हैं। कहते हैं अगर उनकी हर एक बंदे के अंदर जहाँ पे खूबियां थी वहाँ खामियां भी थी, वाहद मेरी हिस्ट्री के अंदर, मेरी तारीख के अंदर जो मैंने कौनैन के वाली की जिंदगी को परखा है, उनके पास जहाँ पे खूबियां हैं तो खूबियां ही हैं, खामी एक भी नहीं निकली। यहाँ तक के उनकी बचपन को देखो वो भी अल्लाह, उनकी जवानी को देखो वो भी अल्लाह, उनका बुढ़ापा देखो वो भी अल्लाह, उनकी सियासत देखो वो भी अल्लाह, उनका गज़वा लड़ना देखो वो भी अल्लाह, उनका हुस्न सलूक देखो वो भी अल्लाह, वो बच्चों के साथ सलूक देख लो वो भी अल्लाह। वो गैर मुस्लिम की बेटी भी सामने आए तो उसके सर के ऊपर भी वो पर्दा देकर, वो कपड़ा देकर वो ये फरमाते हैं अगर मैं अपनी बेटी का साथ नंगा नहीं दे सकता तो मैं गैर मुस्लिम की बेटी का साथ भी नंगा नहीं दे सकता। ऐसी अजमत है वो कि हिंदू भी अपने मेरे कौनैन के वाली की बारगाह के अंदर लिखते हैं, अपनी मजहबी किताब गीता के अंदर लिखते हैं। जब मुस्तफा की अजमत की बारी आती है तो हिंदुओं की मजहबी किताब नाम गीता है और लिखते हैं कि कायनात के अंदर रब्बे बारी ताला ने कोई ऐसी अजीम तरीन शख्सियत को अगर पैदा किया है जो रब के हुजूर भी सबसे अजीम तरीन है, कायनात के अंदर भी अजीम तरीन है, उनकी जिंदगी भी अजीम तरीन है, उनका उसवा हसना भी अजीम तरीन है। तो गीता के अंदर हिंदू लिखते हैं कि आम कमालात है वो जो मोहम्मद मुस्तफा की ज़ाते पाक है। अपनी मजहबी किताब के अंदर भी मेरे मुस्तफा का जिक्र करते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।